फोन देखो चला जाएगा। तो भाई मैंने इनको ना 10,000 रुपये पेटीएम करे, तो नरपत भैया कह रहे हैं पैसे नहीं आए। तो मैंने कहा ये फ़ोन तोड़ेंगे तो इसमें से 10,000 कैश निकल आएगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗਸ ਰੋਜ਼ ਬੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਏ, ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਹੀ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸੋਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ GMP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, GMP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾ दो। तो भाई खाद कूद तो घुल गई है, पर घुलने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये डेले प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ये अगर इकट्ठे चले जाएंगे तो नरपत भी इसका नुकसान क्या है बताओ? सब गेहूं जल जाए। गेहूँ जल जाएगा ना? हाँ। क्योंकि एक जगह इकट्ठी गीली हो जाएगी ना जहाँ पे डेला पड़े वो होने पे गेहूं भसम होते बीच। ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है। कितने साल हो गए किसानी की मदद करते करते? कम से कम भैया सफेद दाढ़ी करी 30-40 साल हुई है। 40 साल हो गए, देख लो। 40 साल एक बंदे हो गए। बलवंत तू कितने साल काम कर दिया किसानों के पास? मैं मेरे हो गए 5 साल हो गए। 5 साल। ਇਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ, ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਮ ਆ, ਜਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਆਹ ਗਾਰਗਨਜ਼ਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ 'ਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਇਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਇਮ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮੈਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸੋਇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨਾਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਦੀ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਇਲ, ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ GMP ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GMP ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਾਈਡ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕਰਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ
ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ सॉइल टेस्टिंग के दौरान वो चीज़ें ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ वो चीज़ है ना। तो ये लोग सब लगे पड़े हैं और वो जा रहे हैं कोने कोने वाले एरियाज़ कवर कर रहे हैं, वहाँ से डालते हुए इधर को आ रहे हैं वापस हमारी तरफ। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खाद का इन्होंने लगाया हुआ ढेरा, तो दूर दूर से मतलब खाद के पास आ ही जाएंगे, फिर इनको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ, जैसे जैसे दिन क्लॉक चल रही है वैसे वैसे इनको थकान भी हो रही है, तो ये मेक श्योर करते हैं जैसे जैसे ये थकते रहते हैं वैसे वैसे ये खाद के और पास आते रहें। तो ये एक वन ऑफ द टैक्टिक्स है जो ये बंदे इस्तेमाल करते हैं। तो भाई हमको उसका कंपोजिशन मिल चुका है, तो इनके बाहर बड़े कट्टों में नहीं दिया हुआ था, ये मैंने नोट नहीं किया, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं बायोजाइम ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स 100% नेचुरल, ठीक है जी, ऐसा इनका दावा है यहाँ पे। तो सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाता है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन, प्लांट जैसे फूड बना रहा है उससे ज़्यादा थोड़ा मतलब हेल्प करता है। और जैसे मैंने कल आपको बताया था, प्लांट को पानी से स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, झटका नहीं आएगा, उसके लिए हमने ये डाला है, ठीक है जी, ऐसा कुछ स्ट्रेस है। और थोड़े मतलब पत्तों में भी बदलाव हो जाते हैं, ठीक है। और 5-6 किलो हम लोग डाल रहे हैं एकड़ का, एक बैग ये 6 किलो का है। तो इसमें आप देखें, इसमें ह्यूमिक एसिड है 8%, अमीनो एसिड है, सी वीड्स हैं, सल्फर कोटेड, बेंटोनाइट रोस्टेड है। तो ये सारे ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में है, ठीक है जी। और इसमें ये भी लिखा है अप्रॉक्सीमेट इंग्रेडिएंट्स फिट टू बी यूज्ड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एज पर नॉर्म्स, ठीक है जी। अब ट्रस्ट ही कर सकते हैं इनकी मार्केटिंग जो हो रही है, पर ये मेरा पहली बार है इनका। मैंने इनसे 30 एकर्स का लिया था और 20 एकर्स इन्होंने मुझे टेस्टिंग के लिए अवेल करा दिया है। 20 एकर्स जाने के मुझे कंपनी ने फ्री दे दिया, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो वो कह रहे हैं आप टेस्ट करके देखो और इसके रिज़ल्ट हमको बताओ, है ना। तो मैं उस हिसाब से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। इनके साथ मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है इस चैनल का, इन्होंने मुझे पैसे पूसे कुछ नहीं दिए, मैं वैसे बता रहा हूँ। जो प्रोडक्ट मैं अपने यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और मतलब अपने बीच में जो ट्रस्ट है, ऐसे कि भी मैं कभी आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये मतलब अपना वादा है अभी आपसे, मेरी ऑडियंस से। वही इससे मैंने कहा पड़ोसियों के आलू लगे हैं मैंने कहा एक बोरी ले लेना, कोई चक्कर नहीं है ना, कि तेरा चलता रहेगा खर्चा। तो कहता मैं एक बोरी नहीं लूँगा, मैं 2 बोरी लूँगा। क्या करेगा 2 बोरी से? एक बोरी घर दे के आऊंगा। अच्छा फिर ऐसा बोलना, एक बोरी घर दे के आऊंगा, एक बोरी अपने लिए रखूंगा। हाँ फिर बस हो गया काम। कौन कौन सब्जी बना लेता है वैसे तू? आलू की, मुर्गे की, और गोभी की, बैगन की, शिमला मिर्च, चटनी बना लेता है? हाँ। अच्छा तुझसे कहूँगा पानी वाली रोटी बना देगा? पानी वाली नहीं बनती मेरे से। अरे फेल हो गया, फिर राणा फेल हो गया। पानी वाली कोई बनाया नहीं हूँ, पानी वाली बनाया नहीं हूँ। गैस में जब मेरे तवा रोटी बनवा लो मेरे से। तवा वाली बना देगा? हाँ तवा वाली बना दूंगा आराम से। क्या बात है। तो भाई खाद डाल के वापस जाते हुए बैग गियर में, ठीक है जी, अपनी रिवर्स टेक्निक बहुत बढ़िया है। खड़ जो भाई, दिमाग थोड़ा जा ਸੁਰਤ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਆਏ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖੜਾਕਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मेरे को कई कमेंट्स आए हैं वीडियोस पे कि हमारे भाई 56-30 को बड़े टायर क्यों नहीं लगे हैं, ये जैसे चौड़े चौड़े टायर लोगों ने लगवाए हुए हैं अभी। मतलब उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ इस टायर के बारे में। जैसे ये टायर 18-4-30 है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें 18 क्या है, इसमें 4 क्या है और इसमें 30 क्या है। तो 18 आपका हो गया, 18 आपका हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 18.4 इंचेस, ठीक है, ये इसकी विड्थ हो गई। और 30 इसका ये डायामीटर है, हर तरफ से ये 30 है। तो आप इस पे कोई भी मशीनरी लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, तो ये जो गुड्डियाँ कह देते हैं या इनके रिजेस भी कह देते हैं,
ये कितना इम्पैक्ट कर रही हैं सॉइल को, वो मैटर करता है। जैसे अब ये 12/4 = 24 है इसके अंदर, सो वो चीज़ इसकी चौड़ी 12 है, 12.4, और ये 24 है। तो वैसे ही हम लोग किसी ट्रैक्टर का टायर साइज़ हम लोगों ने चेंज नहीं किया, क्योंकि जो अब हमारे ट्रैक्टर्स ऑलवेज खेत में होते हैं, हम लोग कोई मतलब शोशा नहीं करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से हमारे पास इम्प्लीमेंट्स हैं। तो जो जो चीज़ ट्रैक्टर पे लग सकती है वो लगवाते हैं। बाकी जैसे चौड़े टायर करवा लिए, उससे ट्रैक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, उसकी ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड आता है, उनकी जो गियर बॉक्स है, अब ये हब रिडक्शन वाले सिस्टम है इनके अंदर, वो थोड़ी टॉर्क बढ़ा देते हैं। पर ये चीज़ें ट्रैक्टरों को बेकार करती हैं ओवर द लॉन्ग रन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। जैसे हम लोग गन्ना बिजाई कर रहे थे, तो हमने अपना रेज़र ये फ्रंट 2 टायरों के नाप का पीछे रिजेस बनाए थे। तो वो फ्रंट 2 जो टायर थे वो मेक श्योर कर रहे थे कि भी वो रिजेस के बीच में चले, वो कोई रिज खराब नहीं कर, डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो रिजेस बिल्कुल क्लीन आ रहे थे। इसमें अब पतला टायर लगा है, तो इट वाज गुड कि भी ये रिज में बढ़िया चलता है। और अब इसमें देखो, इसमें 16/9/28 टायर है, इसका भी हमने चौड़ा नहीं करवाया। और इस लॉन्ग रन में मैं आपको पहले भी बताया, ये 18 साल पुराना ट्रैक्टर है, तो ये किस लिए इनकी वर्क लाइफ बढ़ गई है, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ना इसमें टर्बो लगा है ना कुछ, सेम इंजन है, सेम गियर बॉक्स है, सेम सब कुछ है। बस थोड़ा सा मतलब ये पेंट रीपेंट हुआ है, ये वाला छोड़ के बाकी सब वैसा हुआ है। तो वो ट्रैक्टर की वर्क लाइफ बढ़ाता है। आप लोगों का सजेशन तो ठीक है कि हम चौड़े चौड़े टायर डलवा लें, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा हम लोगों को। तो आप लोगों को अगर फ़ायदा दिखता है तो आप कमेंट में बताइए भी उसका फ़ायदा है क्या। उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, उसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि भी एक लुक आ जाती है। अब बताओ, जो टायर आप 250 HP ट्रैक्टर में देखते हो, 300 HP ट्रैक्टर में देखते हो, वो 75 HP ट्रैक्टर में आप कैसे लगा सकते हो, भारी पड़ जाएगा। तो उसी वजह से इन चीज़ों की लाइफ अगर आपको बढ़ानी है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके ट्रैक्टर पे टायर्स और जो वेट बैलेस्टिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। अब आपको वेट बैलेस्टिंग की बात बताई दी है तो बताता हूँ। ये जो वेट कैरियर है, ये हमारा 70 to 80 kgs का कैरियर इटसेल्फ है, ठीक है, ये चूल्हा जिसको कह देते हैं। उसके बाद ये हमारे 30 किलो का एक अपना जेरिकन वेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 3 ज़ा 24, 240 kgs हो गया, प्लस 70 80 वो हो गया। और पीछे इसके पीछे व्हीलों में इसके लगा है 1.5 क्विंटल इधर लगा है, 1.5 क्विंटल उधर लगा है। सो ये ट्रैक्टर प्रॉपरली वेट बैलेस्टिंग हुई है इसमें। तो फिर भी उसके बावजूद ये इस मशीन पे चलता है और बीज भरा होता है, तो ऐसा लगता है कि आगे से उठेगा, पर उठता नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर हल्का हो जाता है आगे से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सेफली हमको अपने ट्रैक्टर मशीनरी के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम इनके साथ ऐसा करेंगे जैसे हम लोग मतलब बहुत ज़ोर लगवाएंगे, इनसे कुछ भी करवाएंगे उल्टा सीधा, तो ये जल्दी ख़राब होंगे। और कई बार मैंने देखा है कोई वीडियोस डालते हैं कि भी क्रॉस तोड़ देता है, ये तो वो कर देता है वो कर देता है। अगर प्रॉपरली ग्रीस्ड क्रॉस हो तो मजाल है, उसको 300 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर भी गर्म नहीं कर सकता। अगर उसमें प्रॉपर ग्रीस चढ़ी है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें आग लग गई, ऐसा कुछ होगा। तो अपने इक्विपमेंट को भी हम व्लॉग बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फार्मिंग के बारे में, पर मैं आप सब तक ये भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ कि भी अपने इक्विपमेंट की मतलब अगर सलामती चाहते हो तो इनको ऑन अ डेली बेसिस आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, धो के रखने पड़ेंगे, साफ़ करने पड़ेंगे, ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, और मतलब ऑयल चेक्स करने पड़ेंगे, फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, सब कुछ टाइम से होना ज़रूरी है, तब इनकी लॉन्ग रन में आप लाइफ मेंटेन करके रख सकते हैं। नहीं तो वो हमारा वो दूसरा, उसके पास दूसरा मीटर लग चुका है। पहला मीटर हमने 6000 घंटे पे चेंज किया था, अब उसके बाद फिर से 7000 घंटे हो चुके हैं, तो आप लगा लो भी कितना वो चल चुका है, 36 हमारा। और उसमें अब जाके थोड़ा उसके हांडी में प्रॉब्लम आई है पीछे, तो ऐसा लगता है कि भी ये सब मतलब देखने में ही अच्छा आसान लगता है, सौखा लगता है, पर इसको जब आप करने में आओ तो आपको एक रोज़ ऑन अ डेली बेसिस एक
है ना। इस ट्रैक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी बताता हूँ। ऑन एन एवरेज 5 लीटर घंटे का खाता है ये वाला जो है 3230 HP ऑन एन एवरेज 1 घंटे का ये ले लेता है 2.5 से 3 लीटर, बहुत आराम से चलता है। फिर उसके बाद आ जाओ ये 3037, इसमें भी मैसी का इंजन है, उसमें भी मैसी का इंजन है, पहले भी बताया। दिस इज सिम्पसन 241 है ना, और छोटा इंजन है 39 HP का। इसमें डीजल की खपत और कम हो रही है, इवन 4x4 पे ये 2 से 2.5 लीटर तेल खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता। मतलब 6,000 रुपये के डीजल में इसने 34 किला गन्ना बिजाई कर दिया, तो बहुत एफिशिएंट है। और ये बेसिकली हाथी है, और इसको जितना काम दोगे ये उतना खाएगा। अगर इसको बड़ा काम दे दिया आपने तो ये ज़्यादा खाएगा। जैसे अब सुपर सीडर में चलाते हैं इसको, तो ये 8 से 10 लीटर के स्ट्रेच में खाता है, पर काम ज़्यादा निबेड़ता है। इसको आप तीसरे लो में भी चला सकते हो, जैसे अगर आपने खेत जुताई करी हुई है, बढ़िया खेत साफ़ है, तो उसमें तीसरे लो में चला लो। और साफ़ नहीं है, सफाई चाहते हो, तो आप पहले लो में चलाओ, तो उसमें ये थोड़ा तेल ज़्यादा खाता है। हमारे ऑलमोस्ट सारे खेत पहले लो में लगे हैं, तो भाई हमारे 6-7 ड्रम लग गए हैं इसमें बिजाई में। तो भाई इंस्पेक्शन पे चले हैं, तो बल्लू और नरपत भैया वो लगे मेड़ साफ कर रहे हैं साइडों में। तो अपना फंडा भाई ये है, आप थोड़ी सेफ्टी को एक मेन अपना वो बनाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने फार्म पे, है ना, जो भी आप यूज़ कर रहे हो इक्विपमेंट अपना। तो जैसे गोरों ने कहा है कि भी यू कैन जज अ मैन बाय हिज शूज़, राइट। जैसे आप 4 बंदों के सामने खड़े हो, आप किसी बंदे के बूट देख लोगे तो आप पहचान जाओगे ये कितनी औकात का है गोरों के हिसाब से। तो अगर आपको किसी किसान को जज करना है, कैसे किस जज तो करना नहीं चाहिए, तो यू कैन जज अ फार्मर बाय द वे ही कीप्स हिज इक्विपमेंट, ठीक है जी। और गोरों का ये मानना है, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग इन लाइफ। आप जैसे छोटे से छोटा काम जैसे करते हो ना, आप बड़े से बड़ा काम भी वैसे ही करोगे। अगर आप सफाई से छोटा काम करते हो, तो आप सफाई से बड़ा काम करोगे। तो अपना जो डिसिप्लिन है वो अंदर से आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। आप खाली जैसे मान लो अब मैं कोई फेक पर्सनालिटी लेके आऊँ आप तक व्लॉग में, मैं कोई झूठा बंदा बन के दिखाऊँ जो मैं हूँ नहीं, तो 1 साल व्लॉग चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, चौथे साल ठप, ठीक है जी। तो हम कोशिश यही करते हैं। मैं तो देखो जो हूँ, मैं आपके सामने ऐसा ही हूँ, और असली में भी वैसा ही हूँ। तो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके ना बंदा सदा खुश रहता है और जिਉਂਦਾ बसदा रहता है। तो इस चीज़ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मेरा मानना ये है जी। तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग से कुछ सीखने को मिले, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट की दुनिया तो बहुत बड़ी है, आप लोगों को, ठीक है, जैसे किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, जो इस दुनिया को वापस देने में लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब मुझको दो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब फिलॉसफी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने जैसी सेम थिंकिंग है, वो अपने साथ मेलजोल खाएंगे, है ना। उनको ये नॉलेज ही एंटरटेनिंग लगेगी। तो वैसा ही मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो अब हंसी मजाक अपनी ज़िंदगी में चलता है, पर हंसी मजाक एक हद तक रखना चाहिए। मेरा माइंडसेट एक स्टोइक की तरह है, ठीक है जी। पुराने ग्रीक फिलोसफर्स को मैं बहुत अच्छा मतलब मानता हूँ और पढ़ता हूँ उनको। तो वो सब बातें भी माइंड में रखते हुए ना, आप कभी भी हार मत मानना अपनी दुनिया में, जो भी है, क्योंकि ये दुनिया आपको धक्के मारेगी, जूते मारेगी, सब कुछ कर देगी। क्योंकि बड़े बड़े पैगंबर पीर इस दुनिया में आए ना, वो भी गालियाँ खा के गए हैं, भले ही उन्होंने इंसानियत को कुछ अच्छा दिया है। क्योंकि इंसान एक ऐसा जानवर है जो उल्टा चलता है। उसके लिए अच्छा करो वो आपको खा जाएगा, उसके लिए बुरा करो वो तब भी आपको खाने को पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना करो वो तब भी आपको खाने को पड़ेगा। सो यू कैन नॉट अवॉइड व्हाट्स अनअवॉइडेबल, ठीक है। कदे इदा ना सोचो कि यार ये मेरे ना होया यार, इस फलाने बंदे करके
ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ पत्थर वाले लिए रुक गए तो फिर ਇੱਟਾਂ कौन लाऊगा। तो मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में, ठीक है जी, जो कि कल आएगी। हमने डिसाइड किया हम डेली व्लॉग्स अपलोड करेंगे, तो देखते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, पसंद आए तो कमेंट में बताना। मिलते हैं, टेक केयर।